Students, in this video, I'm going to discuss some examples on KKT condition. So first example is minimization of f of x is equals to x1 square minus 4x1 plus x2 square minus 6x2. Subjected to x1 plus x2 is less than equals to 3 minus 2x1 plus x2 is less than equals to 2 and x1 x2 is greater than equals to 0. So this is the problem. So first we will examine the sufficient condition, for which we need to find out the convexity and concavity of the functions. First objective function is this. So if you write down this function f is x1 square minus 4x1 plus x2 square minus 6x2. This is the constraint. So this is say g1. G1 is x1 plus x2 minus 3 is less than equals to 0. So we have taken this 3 in the left hand side. Then g2 minus 2x1 plus x2 minus 2 is less than equals to 0. Again we have taken this, and this is the feasibility condition. So we are not taking this as a constraint here. This is the condition. We have to check finally whether the solution is x1 x2 is greater than equals to 0 and not. If not, then we will not adopt that solution. Fine. So here we have objective function and two constraints. Now here first find out its Hessian matrix and then check the convexity or concavity. Fine. So here its Hessian matrix is HF. Hessian matrix of f. Objective function is del 2f by del x12, del 2f by del x1, del x2. Here del 2f by del x2, del x1 and del 2f del x2. So after first partially differentiate this with respect to x1 and then with again with respect to x1, so we will get 2, then 0, 0 and 2. You will see, you will examine, you will get this. Fine. So now apply the minor test. So what is d1? d1 is 2, which is positive, this value. d2 is the determinant of this, 0, 0, 2, which is 4, again positive. So positive definite, and hence f is convex. So f is convex, that means having this type of shape. Fine. Now the second, this is linear, that's why convex. This is also linear, so convex. So objective function is convex, constraints are convex, and hence by this condition, sufficient condition. Problem is of minimization in nature. Objective function is convex, solution space is also convex, and that's why the necessary condition is sufficient also. Fine. So here this is convex, these are convex, so their intersection will be convex, so solution space will be convex, and hence we can say that KKT conditions become sufficient, necessary conditions become sufficient. यानी ये गारंटी है कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो ऑप्टिमम होगा ही होगा 100%. Fine. Now we will apply the KKT conditions. What are those? KKT conditions are, we have already discussed about the KKT conditions. These are the KKT conditions. These are the KKT conditions: optimality condition, feasibility condition, complementary slackness condition, and non-negativity.
So these are 4 conditions. So let us take one by one. Fine. So first is optimality condition. Optimality condition is this: del f by del xi plus lambda 1 del g1 by del xi plus lambda 2 del g2 by del xi is equal to 0, because we have only two constraints, g1 and g2. That's why this is equal to 0. Here I is two variable problem, so I is 1 and 2. ठीक. Now take I is equals to 1. इसको देर इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑल्सो. इसको लिखने का एक और तरीका है. वो क्या है? दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ प्लस लैम्डा 1 g1 प्लस s1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 g2 प्लस s2 होल स्क्वायर. This is the Lagrangian function after introducing slack and surplus variable. Then gradient of L is equal to gradient of f plus lambda 1 gradient of g1. This is constant, so 0. Lambda 2 gradient of g2. So gradient means derivative. Fine. So here necessary means this should be 0. This should be 0. This should be 0. So optimality condition is this. When you expand this, so what is this? Gradient f means del f by del x1 del f by del x2 plus lambda 1. What is this? Gradient derivative of g1 with respect to x1 gradient of g1 del g1 by del x1 del g1 by del x2. This is the meaning of this, plus lambda 2. What is the meaning of this? Del g2 by del x1 del g2 by del x2. This is equal to 0. 0 means 0 0. So this is the vector form. So this is written here. So in place of x1 x2 we have written xi. Fine. So ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है. इसी को जब i इक्वल टू 1 और 2 पुट करेंगे आप, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. एंड फाइनली दे आर नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ जी एफ ग्रेडियंट ऑफ g1 ग्रेडियंट ऑफ g2. फाइन. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. You can also write down this. Fine. So I think you understand. So now put I is equal to 1. So when you put I is equal to 1 and compare first ordinate this, so del f by del x1 plus lambda 1 del g1 by del x1 plus lambda 2 del g2 over del x1 is equal to 0 from right hand side. Similarly, when you compare the second one, so del f by del x2 plus lambda 2 del g1 by del x2 plus lambda 2 del g2 by del x2 is equal to 0. This is the first equation, this is the second equation. Fine. तो अब हमने क्या किया? f को partially differentiate किया. So what we will get partially differentiate this with respect to x1 for I is equal to 1 means this. I is equal to 1 means this equation. So partially differentiate with respect to x1, we get 2x1 minus 4 plus lambda 1 and del g1 by del x1. So this is g1, first constraint. Partially differentiate this with respect to x1, we get 1. So 1 lambda 1, then plus lambda 2 del g2 by del x1. This is g2, second constraint. So differentiate with respect to x1, we get minus 2. So that's why minus 2 lambda 2 is equal to 0. This is equation number 1. Similarly, for I is equal to 2, we get this equation. So this is written here. I is equal to 2 means this equation. So partially differentiate f with respect to x2. So x2 के respect में किया तो क्या आएगा?
2x2 minus 6, so 2x2 minus 6 plus lambda, this lambda 1, sorry, lambda 1 del g1 by del x2. So this is g1 with respect to x1, with respect to x2 we get 1, so that's why lambda 1 plus then lambda 2 del g2 over del x2. This is with respect to x2 we get again 1, so only lambda 2, so lambda 2. So this is equation number 2. I think you understand. So this is first equation, this is second equation, optimality conditions. Now the feasibility. Feasibility में कुछ नहीं, as it is constraints. So this is equation, this is equation, so this is written here. Third equation and fourth equation. Complementary slackness. Complementary slackness means lambda 1 multiplied by g1 is equal to 0, lambda 2 multiplied by g2 is equal to 0. So lambda 1 multiplied by g1, that means this x1 plus x2 minus 3 is equal to 0, and lambda 2 into 2x1 plus x2 minus 2 is equal to 0. This is complementary slackness condition. And non-negativity, since the problem is of minimization, that's why lambda 1 positive, lambda 2 positive. This is non-negativity conditions. Fine. ठीक है. So these 1 to 7, these are actually the KKT condition. Karush, Kun, Tucker. This is in short KKT. Karush, Kun, Tucker conditions. Karush, Kun, Tucker condition. ठीक, fine. So now to solve these equations, basically how to solve these 7 equations. So to solve this, we will take these 4 cases. Case number 1, when lambda 1 and lambda 2 both are 0. Case 2, when lambda 1 is non-zero, lambda 2 is 0. Case 3rd, when lambda 1 is 0 but lambda 2 is non-zero. And case 4, when lambda 1 is non-zero, lambda 2 is non-zero. तो इन चारों को सॉल्व करना है और देखना है कि जो भी सॉल्यूशन यहाँ से आएगा क्या वो इन सबको सेटिस्फाई करेगा. अगर करेगा तो उसको हम अडॉप्ट करेंगे, एंड दो सॉल्यूशन इज कॉल्ड केकेटी पॉइंट्स, और जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे हम उनको छोड़ देंगे. फाइन. सो नाउ कंसिडर केस 1, व्हेन लैम्डा 1 इज 0, लैम्डा 2 इज 0. सो व्हेन लैम्डा 1 इज 0, लैम्डा 2 इज 0, then according to equation number 1, this is 0, this is 0. So 2x1 minus 4 is equal to 0. That means x1 is equal to 2. So from 1 we get x1 is equal to 2. Similarly, lambda 1 is 0, lambda 2 is 0. So x2 is from here, 2x2 minus 6 is equal to 0. So x2 is 3. So point is 2 and 3. But this point 2, 3 does not satisfy equation number 3. This, because 2 plus 3 is 5. And 5 is not less than equal to 3. From third, जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 2 plus 3 is 5. But 5 is not less than equal to 3. We will not get this. We will get 5 is less than equal to 3. This is true. This is false. This is not true. That's why does not satisfy third. And so 2, 3 is not a solution. तो यहाँ से कोई solution नहीं आता. Fine. Now the second case, when lambda 1 is non-zero, lambda 2 is 0. Case 2. So case 2, when lambda 1 is non-zero, lambda 2 is 0. So from equation number 1, equation number 1 में lambda 2 की value 0 डाली. So what we will get? Lambda 2 is 0. So we get 2x1 minus 4 plus lambda 1 is 0. From second equation, again put lambda 2 0, 2x2 minus 6 plus lambda 1 is 0. तो ये दो इक्वेशन यहाँ से आएंगी. So they are written here, this and this. From fifth equation, x1 plus x2 plus is equal to 3. Fifth equation is this. Since lambda 1 is non-zero, ये non-zero है तो इसका मतलब ये 0 होगा. So x1 plus x2 is equal to 3. यहाँ से आएगा. So this is this. Now from this equation, these two, when you eliminate lambda 1 को eliminate करेंगे यहाँ से,
So we get this equation. This equation is as it is here. Now solve these two. We get x1 is equal to 1, x2 is equal to 2, and lambda 1 is 2. So what is the solution? Solution is x1, x2 is 1 and 2. This. और ये जो solution है, क्या आया solution? x1 is 1, x2 is 2, lambda 1 is 2, and lambda 2 is 0. Lambda 2 is 0 from here. So here from here lambda 2 is 0. So this solution satisfies equation number 1 to 7. सभी को satisfy करता है, सभी को. And hence solution 1 to x1 is 1 and x2 is 2. This is x1, this is x2. This solution could be a KKT point. ये एक solution है. Fine, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 से लेके 7 तक सबको सेटिस्फाई करता है, सबको. यू कैन चेक, आप चेक करेंगे कि 1 से 7 तक सबको सेटिस्फाई करेगा. So this is a KKT point. Fine. Now case number 3rd, when lambda 1 is 0 and lambda 2 is non-zero. Fine. So now from equation number 1, this is from 1. 1 implies 2x1 minus 2 lambda 2 is 4. This is from 2. 2 implies 2x2 plus lambda 2 is equals to 6. And this is from 6th. 6th implies this. Why? This is equation number 6th. Lambda 2 non-zero है तो ये 0 होगा. Minus 2x1 plus x2 minus 2 is equal to 0. Fine. तो ये लिखा हुआ है. फिर वही यहाँ से lambda 2 एलिमिनेट करेंगे and then finally solve the system. So what we get, x1 is 4 by 6, x2 is 18 by 5, and lambda 2 is minus 6 by 5. So this is less than 0. And since this is less than 0, so this will not satisfy this non-negativity condition. इसको satisfy नहीं करता 7th को. And hence, but lambda 2 should be greater than equal to 0. Thus, this is not a solution. So this is not a solution. This is not a solution. Now the case number 4. When lambda 1 is non-zero, lambda 2 is non-zero. So from 5, x1 plus x2 is equal to 3. This equation. From 6th, we get this equation. That means this equation. Solve these two, we get x1 is equal to 1 by 3, x2 is 8 by 3. And when we put x1 and x2 in equation number this, यहाँ पुट करेंगे x1 भी और x2 भी, फिर सॉल्व करेंगे. सो लैम्डा 1 भी आएगा, लैम्डा 2 भी आएगा. फाइन. सो फ्रॉम हियर 2x1, यहाँ पर x1 और x2 पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे. सो वी विल फाइनली गेट lambda 1 and lambda 2. And we will see that, what we will see? We will see that lambda 2 is minus 8 by 9. Lambda 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी minus 8 by 9, which is a negative value. And that's why this is also this is not a solution. ये भी solution नहीं है. तो 4 केसेस में से solution जो आया वो आया सिर्फ ये. From case number 2. From case number 2 we get only solution. So this is written here. Thus from case 2, 1, 2 is the only KKT point. अब graphically देख लेते हैं. This is graph x1, x2. These are the constraints. This is x1 axis, x2 axis. This is the constraint, these two. And x1, x2 is already positive, greater than equals to 0. This. So in first octant we are having this shaded part is the feasible region. This is the feasible region. Now draw your objective function. तो क्या करेंगे? Just give some value. इसको कुछ value दे दो. Is equal to say for example कुछ value दे दो. So this is actually a circle. कैसे है ये सर्किल? इसको आप बना सकते हो. इसको क्या लिख सकता हूँ? x1 minus 2 whole square plus x2 minus 3 whole square. तो कितना ऐड किया मैंने इसमें? 4
यहाँ पे ऐड किया, 9 यहाँ पर ऐड किया, सो दिस इज -13 लिख सकता हूँ. सो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. फाइन. तो अब मैंने इसकी वैल्यू मान लिया माइनस, तो 2 and 3 is the center. 2 and 3 is the center of this circle. This is basically the circle. So circle, so you will see that this is 2, this is 3. 2 and 3 is the center. And now draw the circles, because right hand side तो हमें पता ही नहीं उसकी, so हमें radius नहीं पता, so that's why we are having different circles of different radius, but the center is same, 2, 3 point, 2 and 3. And now you will see that this objective function basically touches this surface feasible region at this point, and this is nothing but 1 and 2. This is the solution 1 and 2. तो ये 1 और 2 को टच करता है यहाँ पर, यही हमारा सॉल्यूशन था 1 और 2 जिसको हमने इवैल्यूएट किया. और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आती है यहाँ, वो आती है f इज इक्वल टू -11. तो आप ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से रेडियस भी निकाल सकते हो, कितनी रेडियस थी इस सर्किल. ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन प्रोसीजर. नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम. दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम. एज इट इज सेम. Minimum f is 2x1 plus x2 subjected to x1 square plus x2 square is less than equals to 4, x1 minus x2 is less than equal to 0. यहाँ पर x1 is greater than equal to 0, x2 is greater than equal to 0 नहीं है, वो नहीं दिया गया है. ठीक. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, these are two constraint. तो पहले हम क्या चेक करेंगे, इनकी कॉन्वेक्सिटी. दिस इज लीनियर फंक्शन, सो दैट्स वाई कॉन्वेक्स. ये क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है, सो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्वेक्स. दिस इज ऑल्सो ए लीनियर फंक्शन, सो कॉन्वेक्स. सो अल्टीमेटली दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स. इसको आप हेसियन से भी चेक कर सकते हैं, आप हेसियन से भी चेक कर सकते हो. फाइन. सो अल्टीमेटली दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन, दैट्स वाई KKT नेसेसरी कंडीशंस बिकम सफिशेंट. तो वो सफिशेंट बन जाएंगी. नाउ KKT कंडीशंस क्या है, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन. ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या थी, मैंने बताई थी, दिस डेल एफ प्लस लैम्डा डेल G1 प्लस लैम्डा 2 डेल G2 इज इक्वल टू 0. यही लिखा हुआ है यहाँ दिस. सो डेल्टा एफ ऑफ एक्स मीन्स 2, 1. इसको आप ट्रांसपोज कर लो, इसको ट्रांसपोज कर लो, इसको ट्रांसपोज कर लो, इसको ट्रांसपोज कर लो. सो बेसिकली दिस इज रिटन हियर 2, 1. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2, सो वी गेट 2 and 1. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x1, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x2 प्लस लैम्डा 1. फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो यू विल गेट 2x1. सो विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो यू गेट 2x2 प्लस लैम्डा 2. इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे सो यू गेट 1. विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0, 0 ट्रांसपोज. कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑक्टेंट 2 plus 2x1 lambda 1 plus lambda 2 is equal to 0. So this will give you this equation. सेकेंड को करेंगे 1 plus lambda 1 2x2 minus lambda 2 is equal to 0. So second equation. So this is optimality condition. ठीक है. तो this is first equation, this is second equation. Feasibility condition is this x1 square plus x2 square minus 4 is less than equal to 0 and x1 minus x2 is less than equal to 0. Third and fourth. Complementary slackness, lambda 1 into G1 is equal to 0. That means lambda 1 multiplied by this is equal to 0. Lambda 2 into G2x is equal to 0. So lambda 2 into G2. G2 is x1 minus x2. This is equal to 0. So this is your complementary slackness condition. Then non-negativity, lambda 1 is greater than equal to 0. Lambda 2 is greater than equal to 0. This is seventh equation. So again we are having 7 equations. वही 4 केस बनेंगे. केस 1 lambda 1 and lambda 2 both are 0. Case 2 when lambda 1 is 0 and lambda 2 is non-zero. Case 3rd when lambda 1 is non-zero, lambda 2 is 0, and case 4 is, so here we have case 1. Case 1 lambda 1 is 0, lambda 2 is 0. Case 2 when lambda 1 is 0, lambda 2 is non-zero. Case 3rd when lambda 1 is non-zero, lambda 2 is 0. And case 4th when lambda 1 is non-zero
and lambda 2 is non-zero. ठीक. Now from first case number 1, when lambda 1 is lambda 2 both are 0. When both are 0, so from here first equation ये भी 0 ये भी 0, so 2 is equal to 0, 2 is equal to 0, ये तो possible ही नहीं है, तो which is not possible. So that's why this is not possible. case 1 ये आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ 0 0 पुट करेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. इसी तरह सेकंड में डालेंगे तो ये भी 0 0 तो 1 इज इक्वल टू 0 आएगा. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला. ठीक. केस 2 क्या था? लैम्डा 1 इज 0 बट लैम्डा 2 इज नॉन ज़ीरो. सो फ्रॉम हियर सिंस लैम्डा 2 इज नॉन ज़ीरो, that's why x1 is equal to minus x2 is 0. This implies x1 minus x2 is 0. So ये यहाँ लिखा गया है lambda 1 is 0, x1 is equal to x2, x1 is equal to x2 from here. फिर x1 equal to x2 डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1. when lambda 1 is 0, lambda 1 is 0, so what you will get 2 plus lambda 2 is 0. तो यहाँ से आएगा 2 प्लस लैम्डा 2 इज़ 0, सो लैम्डा 2 इज़ -2 आया तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा सेवेंथ को, एंड हैंस अगेन नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम हियर, ये भी कैंसिल. नाउ केस थर्ड. व्हाट इज केस थर्ड? व्हेन लैम्डा 1 इज नॉन ज़ीरो, लैम्डा 2 इज 0. व्हेन लैम्डा 1 इज नॉन ज़ीरो, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 दिस इज नॉन ज़ीरो, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 0. दैट मीन्स x1 square plus x2 square minus 4 will be 0. ये यहाँ लिखा गया है. This is lambda 2 is 0, lambda 2 is 0 and this is non-zero means this should be 0. So this should be 0. फिर हम इनको यहाँ से लाएंगे, यहाँ से lambda 2 is 0, तो lambda 2 0 डाला, so we will get 2 plus 2 lambda 1 x1 is equal to 0. यहाँ 0 डाला, सो 1 प्लस 2 लैम्डा 1 x2 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है. सो x1 लैम्डा 1 इज बेसिकली -1, x2 लैम्डा 1 इज -12. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. दिस इज फ्रॉम 1, दिस इज फ्रॉम 2. ठीक है. ना केस नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, ये हमने यहाँ सॉल्व किया है, अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं. केस नंबर 4. केस नंबर 4 मीन्स व्हेन लैम्डा 1 इज नॉन ज़ीरो, लैम्डा 2 इज नॉन ज़ीरो. सो फ्रॉम हियर व्हेन लैम्डा 1 इज नॉन ज़ीरो तो दिस पार्ट विल बी 0, लैम्डा 2 इज नॉन ज़ीरो में दिस पार्ट शुड बी 0. सो ये यहाँ पे लिखा गया है. ठीक है. तो अब हम केस नंबर 3 को देखते हैं. फर्स्ट और सेकेंड तो पहले ही रिजेक्ट हो गए हैं. सो केस नंबर 3, x1 lambda 1 is -1, x2 lambda 1 is -12. Fine. Now we will substitute these in, because in case number 3 we are having this equation x1 square plus x2 square is equal to 4. So x1 square plus x2 square is equal to 4. So from here x1 is -1 by lambda 1 whole square plus x2 square. From here x2 is -12 into 1 by lambda. ये यहाँ लिख दिया. So after simplification we get this equation. So from here lambda 1 is plus minus square root of 5 by 16. So lambda 1 is square root of 5 by 4. We are taking positive value, considering positive value. Because we have this restriction. इस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने निगेटिव को हटा दिया. सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 by 4 वैल्यू आ गई. इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया. सो x1 इज -4 by स्क्वायर रूट ऑफ 5, x2 इज -2 by स्क्वायर रूट ऑफ 5. दोनों निगेटिव है और हमारे पास निगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि x1 निगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि इस बार नहीं है हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन. फाइन. सो वी कैन टेक, हम इनको रख सकते हैं. फिर इनको चेक किया फ्रॉम 1 to 7. फ्रॉम 1 to 7 इनमें चेक करेंगे. सो वी विल सी दैट दिस सॉल्यूशन सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1 to 7 एंड सो दिस इज अ केकेटी पॉइंट. ये केकेटी पॉइंट है, सबको सेटिस्फाई करेगा ये. ठीक है. नाउ द
Case number 4, when x1 square plus x2 square is equal to 4, x1 is equal to x2. So what we will get? This. So from x1 equal to x2 जब इसमें पुट करेंगे तो 2x1 square equal to 4, x1 is plus minus square root of 2. So when x1 is positive value root 2, तो x2 will be root 2 because we have this equation. When x1 is negative value minus root 2, so x2 is also minus root 2. तब इक्वेशन नंबर 1 implies, इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें इस पहले वाले पार्ट को, इसको अगर हम ले रहे हैं, सो 1 और 2 implies 2 lambda 1 is this प्लस 2, 1 में ये आया, 1 2 से ये आया, लैम्डा 1 ये आता है निगेटिव वैल्यू. सो दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी कैंसिल हो गया. सेकंड वाला जब दोनों निगेटिव हैं, सो अगेन 1 और 2 में रखा, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 implies lambda 1 is positive but lambda 2 is negative. So again this is not a solution. तो ये भी कैंसिल हो गया. केस नंबर 4. तो केवल केस थर्ड सॉल्यूशन देता है एंड सॉल्यूशन इज -4/√5 -2/√5. दिस इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन. सो आप देखेंगे दिस इज अवर ग्राफिकली, दिस इज x1 एक्सिस, दिस इज x2 एक्सिस, दिस इज अवर कंस्ट्रेंट x1 minus x2 is less than equal to 0 and this is the circular part. x1 square plus x2 square is less than equals to 4. 4 का मतलब रेडियस 2, यानी इसके अंदर अंदर का पार्ट. सो ग्राफिकली दोनों का इंटरसेक्शन ही आएगा, ये दिस शेडेड पार्ट. देन द कंस्ट्रेंट इज लीनियर. क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? सॉरी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस 2x1 प्लस x2. इसको कुछ वैल्यू दे दो, ड्रॉ करो, सो यू विल सी दैट दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. रेड लाइन्स, दीज रेड लाइन्स आर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो अब इफ यू विल चेक एट एनी पॉइंट, सो हियर एट रैंडम पॉइंट हमने लिया वेयर x1 इज 1, दिस पॉइंट 1 and 2. सो इस पॉइंट पे f की वैल्यू आती है 2. यहाँ आती है रैंडम चेक किया हमने f इक्वल टू 3, यानी इस डायरेक्शन में f इंक्रीज कर रहा है. हमें तो मिनिमम चाहिए, तो इसका मतलब ये लोअर पे जाएगा. तो इधर जो है वो इंक्रीजिंग, इधर डिक्रीजिंग. What is our target? Our target is to find out minimum value. Minimum इसका मतलब डिक्रीजिंग डायरेक्शन प्रीफर करेंगे. सो वी विल प्रीफर दिस डायरेक्शन एंड एट दिस पॉइंट, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट जहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कट करता है, एंड दिस इज -4/√5 -2/√5. दिस इज द सॉल्यूशन. फाइन. सो दिस इज द ग्राफिकल वे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल here, थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल. अगर फॉर्मेट ऐसा है, इन द फॉर्मेट मिनिमम नोट पॉइंट, मिनिमम f of x subjected to gj(x) is less than equal to 0, x is greater than equal to 0, ये हमने अभी तक लिया है. बट इफ सपोज वी इंक्लूड द कंस्ट्रेंट gj(x) is greater than type 0, where j is 1 to m, this is m plus 1 to p. तो 1 से लेके m तक के कंस्टेंट इस टाइप के हैं, m प्लस 1 से लेके p तक के कंस्टेंट इस टाइप के हैं. तब और ये जो चीज़ें हैं दे आर कॉन्वेक्स फंक्शंस. ये जो है ये वाला पार्ट ये कॉन्वेक्स है. देन द कॉरस्पॉन्डिंग KKT नेसेसरी कंडीशंस विल नॉट बी सफिशेंट. ये सफिशेंट नहीं रहेंगी. क्यों? क्योंकि हमारा ये ग्रेटर देन टाइप का है, नॉट लेस देन टाइप. ठीक. एंड कॉरस्पॉन्डिंग KKT कंडीशंस आर एज फॉलोज. क्या हो जाएंगी? दिस इज द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, del L by del xi is equal to 0. So we get this equation from delta f of x plus lambda 1 delta g1x and so on lambda p gradient gpx, because total हमारे constant हैं p including these. फिर this is feasibility condition, del L by del lambda j is less than equal to 0. सो फिजिबिलिटी में हमारे ये भी कंस्टेंट आएंगे और ये भी आएंगे. सो जी जे एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फ्रॉम जे फ्रॉम 1 to m एंड ये है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन. ये है फिजिबिलिटी कंडीशन, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन. फिर ये है इसकी
इन कंस्ट्रेंट्स की feasibility condition del L by del lambda j is greater than equal to 0 where j is from m plus 1 to p, so this will give you this, that means this condition, और ये इसकी complementary slackness condition j from m plus 1 to p. ठीक है, तो ये optimality, ये और ये आपकी, ये दोनों, ये और ये दोनों आपकी feasibility condition, ये और ये आपकी, ये दोनों आपकी complementary slackness condition, and now these are the non-negativity condition for these constraints and these are the non-negativity condition for the these constraints. ठीक हो गया, तो इनके लिए greater than equal to 0, इनके लिए less than equal to 0. ठीक हो गया, तो ये हमारी कुछ कंटकर कंडीशंस हैं. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. यानी जब भी लेस देन इक्वल टू होगा तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो लैम्डा नेगेटिव होगा. ये हमारी केकेटी कंडीशंस हैं और फॉर्मेट होना चाहिए मिनिमम. ठीक, तो इसके बेस एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो दिस इज मिनिमाइजेशन ऑफ z 2x1 प्लस 6x2 सब्जेक्टेड टू x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड सो ये हमारा इस टाइप का है कंस्ट्रेंट, ग्रेटर देन टाइप, एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब अगर इसको चेक करेंगे आप तो ये कॉन्वेक्स है, लेकिन अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा के, माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, तब आप देखेंगे f इज लीनियर फंक्शन, सो दिस इज कॉन्वेक्स. g1 इज दिस फंक्शन, दिस इज ऑल्सो लीनियर, सो दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स. लेकिन अगर मैं इसको कंसिडर करूं g2, इसको मैंने नाम रखा है g2 स्टार, सो माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 4, ये कॉन्वेक्स नहीं है, दिस इज नॉट कॉन्वेक्स. आप इसका हेसियन चेक कर लो, यू विल सी द हेसियन. इसका जो हेसियन आएगा वो आएगा -2 0 0 -2, सो दिस इज निगेटिव. सो d1 इज -2 नेगेटिव and d2 is the determinant of this, -2 0 -2, this will be 4 positive. So this is not convex, this is not convex. लेकिन अगर मैं इसको मान लूँ g2 किसको मान लूँ, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज रखूँ, तब ये कॉन्वेक्स है. दिस इज कॉन्वेक्स. वाई दिस इज कॉन्वेक्स? बिकॉज इट्स हेसियन इज 2 0 0 2, d1 इज पॉजिटिव, d2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस इज कॉन्वेक्स. लेकिन तब फॉर्मेट ग्रेटर देन का हो गया, दिस इज द डिफिकल्टी. ठीक, सो देन g2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, रादर देन g2x इज लेस देन इक्वल टू 0. सो द प्रॉब्लम इज नॉट कॉन्वेक्स नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग. तो कॉन्वेक्स नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये नहीं है, एंड हैंस केकेटी कंडीशंस जो हैं वो केवल नेसेसरी हैं, वो सफिशेंट नहीं होंगी. तो वो आपको गारंटी नहीं देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, वो गारंटी नहीं देंगी. ठीक है, फिर वही सॉल्व कैसे करना है, लैग्रेंजियन फंक्शन 2x1 प्लस 6 प्लस लैम्डा 1 g1 प्लस लैम्डा 2 g2. तो हमने यहाँ पे जो माना है वो यही माना है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4. ठीक है, सो नाउ केकेटी नेसेसरी कंडीशंस आर, फर्स्ट ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, ग्रेडियंट ऑफ f of x प्लस लैम्डा 1 ग्रेडियंट ऑफ g1x प्लस लैम्डा 2 ग्रेडियंट ऑफ g2x इज इक्वल टू 0. सो वी गेट दिस इक्वेशन. वेक्टर फॉर्म, तो इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो 2 प्लस लैम्डा 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 2x1 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट दिस इक्वेशन. इसके सेकेंड ऑर्डिनेट को कंपेयर किया, 6 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 2x2 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट दिस इक्वेशन. सो दिस इज ऑप्टिमैलिटी कंडीशन. फिजिबिलिटी, डेल एल बाय डेल लैम्डा 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, सो दिस इज सो, एंड डेल एल बाय डेल लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि सेकेंड कंस्टेंट हमारा कैसा था, ग्रेटर देन टाइप का. सो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ लेस देन है, यहाँ ग्रेटर है, ध्यान रखना. ठीक, सो थर्ड एंड फोर्थ. देन कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट g1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इन g2 इज इक्वल टू, दिस इज योर g2 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये लेस देन टाइप था, सो लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन टाइप था, सो लैम्डा 2 विल बी लेस देन इक्वल टू 0. ये हमारी नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस है. ठीक, सो दीज आर अवर केकेटी कंडीशंस. फिर वही केस बनेंगे, केस नंबर 1, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बोथ आर 0. केस 2 व्हेन लैम्डा 1 इज 0 बट लैम्डा 2 इज नॉन 0, लैम्डा 2 इज नॉन 0 मीन्स दिस शुड बी 0. ठीक है ना, इसका मतलब लैम्डा 2 इज नॉन 0.
केस नंबर थर्ड, व्हेन लैम्डा 1 इज नॉन जीरो, व्हेन लैम्डा 1 इज नॉन जीरो इसका मतलब x1 माइनस x2 विल बी जीरो, तो ये आ गया, एंड लैम्डा 2 इज जीरो. एंड केस नंबर फोर, व्हेन लैम्डा 1 इज नॉन जीरो दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज जीरो, व्हेन लैम्डा 2 इज नॉन जीरो दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज जीरो. तो ये वही चार केस हैं, सेम केसेस. फिर इनको वन बाय वन डिस्कस किया. सो व्हेन फर्स्ट केस लैम्डा 1 इज जीरो, लैम्डा 2 इज जीरो, सो विच वायलेट्स इक्वेशन नंबर 1, एज इक्वेशन नंबर 1 में दोनों को जीरो डाला तो 2 इज इक्वल टू जीरो आता है, तो 2 इज इक्वल टू जीरो आएगा, इसका मतलब नॉट अ सॉल्यूशन. केस नंबर 2 यहाँ से लैम्डा 1 इज जीरो एंड लैम्डा 2 इज नॉन जीरो, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी लैम्डा 2 इज नॉन जीरो का मतलब ये क्वांटिटी जीरो, तो ये क्वांटिटी जीरो. सॉल्व किया. सो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या देगा, लैम्डा 1 इज जीरो, लैम्डा 1 जीरो डाला यहाँ से, सो वी गेट x1 2 प्लस 2x1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू जीरो, सो x1 की वैल्यू आएगी माइनस 1 बाय लैम्डा 2. इक्वेशन नंबर 2 हमें देगा x2 इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 2 लैम्डा 2 माइनस 3 बाय लैम्डा 2. फिर इनको हम पुट कहाँ करेंगे, यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो में पुट करेंगे. सो वी गेट लैम्डा 2 की जो वैल्यू आती है वो आती है ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10 बाय 2. लेकिन हमारे पास लैम्डा 2 कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, निगेटिव. सो वी विल प्रीफर द सेकेंड वन, वी विल नॉट प्रीफर दिस. पॉजिटिव वैल्यू को प्रीफर नहीं करेंगे, निगेटिव को प्रीफर करेंगे ड्यू टू सेवेंथ रिस्ट्रिक्शन नंबर 7. ठीक है. सो लैम्डा 2 इज सेलेक्टेड एज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय 2. सो x1 की जो वैल्यू आती है 2 बाय रूट 2, x2 इज 6 बाय रूट 2 एंड सेटिस्फाइज ऑल द इक्वेशंस. आप चेक कर लेना ये सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो ये KKT सॉल्यूशन है. केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, x1 माइनस x2 इज जीरो, लैम्डा 2 इज जीरो. फिर वन इक्वेशन देगा आपको लैम्डा 1 की वैल्यू माइनस 2, सेकेंड देगा आपको लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6. ठीक है. तो अब क्योंकि लैम्डा 1 की दो वैल्यू नहीं हो सकती, माइनस 2 आ रहा, माइनस और 6 आ रहा, सो कॉन्ट्रोडिक्टिंग टू ईच अदर, एक निगेटिव वैल्यू दे रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दोनों लैम्डा 1 दे रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो ये भी कैंसिल हो गया. लास्ट केस नंबर 4, व्हेन दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, दोनों को सॉल्व किया. सो अल्टीमेटली x1 की वैल्यू आती है यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो x1 की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, वी हैव नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, दिस x1 x2 शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होने चाहिए. सो हमने यहाँ से नेगेटिव वैल्यू हटा दी, इसको नहीं लिया, एज x1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, सो x1 की वैल्यू रूट 2, सो x2 विल बी रूट 2 बिकॉज वी हैव दिस कंडीशन, x1 इज इक्वल टू x2, तो x2 भी रूट 2 हो गया. फिर 1 में डाला तो ये इक्वेशन आती है, इसको सॉल्व किया तो लैम्डा 1 की वैल्यू 2 आती है विच इज़ पॉजिटिव. फिर इस सेकेंड इक्वेशन से हमें ये मिलता है, इसमें वैल्यू डालते हैं, इन दोनों को जब सॉल्व किया तो ये आता है लैम्डा 1 की वैल्यू 2, लैम्डा 2 की वैल्यू निगेटिव, दिस इज लेस दैन इक्वल टू जीरो. तो ये इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है. सो विच सेटिस्फाई 1 to 7, सो वी हैव अ KKT पॉइंट. तो हमें दो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक यहाँ से केस नंबर 2 से, एक केस नंबर 4 से. ठीक है. सो x1 की वैल्यू क्या हुई, x1 x2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 विच इज़ दिस, x2 स्टार इज x1 x2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 विच इज़ दिस. सो दोनों सॉल्यूशन है, गिव्स रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा. और हमने पहले भी चेक किया था कि ये KKT कंडीशन सफिशेंट नहीं होगी, तो इसलिए हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं है. और ये आप देख रहे हैं वी आर हैविंग 2 सॉल्यूशंस. एफ ऑफ एक्स स्टार की जो वैल्यू आती है वो आती है 4 रूट 10, एफ ऑफ x1 स्टार सॉरी, एफ ऑफ x2 स्टार की जो वैल्यू आती है वो 8 रूट 10. ग्राफिकली भी आप चेक करेंगे. सो दिस इज द योर कंस्ट्रेंट, दिस इज x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो लाइन, दिस इज द सेकेंड कंस्ट्रेंट, दोनों का इंटरसेक्शन, और x1 इज पॉजिटिव होना चाहिए, x2 भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये जो शेडेड पार्ट है दिस विल बी द फिजिबल डोमेन. उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ड्रॉ किया. You will see that you will have solutions at 2 points, at this point as well as this point. This point is x2 star, second one, and here is x1 star, this point. दोनों आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, रिलेटिव मिनिमा. ठीक है. सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है 8 रूट 10, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 4 रूट 10.
ये हमारा तो रिलेटिव है, ये रिलेटिव नॉट ग्लोबल, हमारे पास ग्लोबल नहीं है, रिलेटिव है. फाइन. सो दिस इज द KKT कंडीशंस. In the next video we will discuss about the quadratic programming. Thank you.